تعالیٰ فی القرآن المجید استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشاہدین والشاکرین والحمدللہ. حضور محترم غلام محمد حجام صاحب، دہلی کے ساتھی صاحب، ڈسٹرکٹ فورم اور محفل میں ہمیں یہ توفیق دی کہ اس دنوں کے بعد عید میلاد النبی آنے والا ہے. تو آج کی اس محفل کو بہت ہی متبرک میں سمجھتا ہوں. اللہ کرے ان کو ہر لحاظ سے آگے بڑھائے اور ہمیں بھی اس دھرتی کے اندھیرے کو دور کرنے میں اپنی انت تک اپنا بزی شیڈول ایک طرف چھوڑ کر یہاں آئے. ہماری ڈھارس بندائی ہم ان کا والدہ استقبال. راہی نثار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس وقت اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جناب راہی نثار صاحب آپ کلر کی تمس ونان ژٕ کِتھ کٔنۍ ژاکھ ژےٚ کیٛازِ دِتُتھ نہٕ گۄڈٕ دروازس ٹھُک؟ او یار یہِ بُزرگ بندا ہے، أمِس چھِ رِٹایرمنٹ گٔمٕتِس 10 ؤری گٔمتِس 15 ؤری گٔمتِس. واوِ چٲنِس سکوٗلس منٛز أتھی سکوٗلس منٛز چھِ ڈیوٹی پنٕنۍ دِژمٕژ. أمِس چھِ حق بنان یی اَتھ سکوٗلس منٛز ژٕ دِکھ أمِس اَتھ اِنٹری کٔرِتھ. ژٕ وَنکھا أکِس ٹیٖچرس کہ ژٕ کِتھ کٔنۍ ژاکھ میٲنِس کمرس منٛز ناکہٕ بر. اس کے ساتھ میری کلاس فیلو زونل ایجوکیشن آفیسر پٹن اور پرنسپل ہائی سیکنڈری تنویر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے اعزاز میں اگلی ایک پارٹی دینا چاہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک آپ کی مرضی. صرف دو کیا دو تو دو دنیا چار خطری کین استاد علم یہ کین یہ کرے ٹرانسفر یوزن ام سن یہ نالج نہ یہ معمار. یہاں پہ آپ سادن، یہاں پہ آپ کوئی جو ہے دن یا صبح شام جو ہماری چیزیں جو ہے ان کو بنایا نہیں جاتا، بلکہ یہ ایک ایسی صنعت ہے جو روحوں کو تعمیر کرتی ہے، جو سولز کو بناتی ہے، جو مائنڈز کو پریپیئر کرتی ہے. یمن شعرن مز یم بہ لفظ چھس لیکھت ہیکان یم چھنس ہیچنامز محترم تو معزز قمر الدین قادری صاحبن. سے کام کرے ہماری جان حاضر ہے، وہ ڈیڈیکیشن سے کام کرے ہماری جان حاضر ہے. لیکن اگر وہ ہمارا سربراہ کیا اگر سو سون خبر کوتا کلوز تے آسے پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ he is involved in the corruption، سو چھ involved سنس استاد سنس کشتی ملازمت ستانس من، اس کے لیے ہمارے اور سے کوئی اعزاز نہیں. ریسرچس پہ ساری کھت گۄڈنیُک ریسرچ کٔرمٕتۍ تمی یِم پتہٕ یِمو آکسفورڈس منٛز یوٗرپس منٛز یُس ساینس پہ تحقیق ہو سہ گوٚو تہذیب کتابن پہ تو تم ٲسۍ پرناوان میڈیکل کالجن منٛز تہذیب کتاب. اکہِ دۄہ ووٚن تٔمِس تِمو منظور صٲبن کوٚر تِمن سۭتۍ کوآرڈِنیشن تہٕ شُکر الحمدُللہ سون سُہ مسلہٕ گوٚو سُہ اوس 14 ؤرین ہُنٛد مسلہٕ سُہ گوٚو حل. تمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ قیوٗم صٲبُن تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد یُس تہِ باڈی تٔمۍ وِزِ کٲم ٲس کران تِم کو سنبھالنا یہ ایک استاد کا کام ہوتا ہے. لہذا استاد کا رتبہ کیا ہے ہم اس کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت اونچا رتبہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے سامنے بہت شرمسار ہیں کہ ہم اس رتبے کو اس اونچائی تک لینے میں ابھی تک ناکام ہوئے. کیونکہ سوسائٹی میں اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے کر سکے ان سبھی حضرات کو جو کی فیلسٹیشن کے لیے یہ آج کی تقریب ان کے بعد زوردار تالیاں ہو جائے نا. زوردار کی کرسی پہ نہیں بیٹھے ان کے لیے زوردار تالیاں. ایک بار پھر سے تالیاں کریں. ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ یہ بھی لفافی جرنلزم کی طرف مائل ہو جائے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان کے ماں باپ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا جن کے فرزند ارجمند ہے، اور راہی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چاہے وہ انرولمنٹ کے حوالے سے ہماری مدد
टीचर्स फोरम जून पटन की तरफ से आज शानदार प्रोग्राम पटन हायर सेकेंडरी में यहाँ पे मुनक्कद किया गया, जिसमें बहुत सारे उस्तादों की जो अपनी सर्विस से आज सबकदोश हो गए, उनके एजाज में इन्होंने एक तकरीब रखी थी, जिनमें बहुत सारे यहाँ पे हम ये कहेंगे कि उस्तादों के साथ साथ जो टीचर्स फोरम के यहाँ पे स्टेट चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, सब ने शिरकत की। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए जो चेयरमैन है टीचर्स फोरम के, इनसे बात करेंगे। सर, आज बहुत दिनों के बाद इस तरीके का प्रोग्राम में देखा जहां पे उस्तादों की हौसला अफजाई की, और टीचर्स फोरम मुझे लगता है कि इसमें हमेशा पेश होती है। क्योंकि आज का आपने ये प्रोग्राम जो देखा है, ये हमारी टीचर्स फोरम की एक रीत रही है। जितने भी हमारे असातिज़ा किराम जो सबकदोश होते हैं, जिन्होंने इसमें टीचर्स फ्रेटर्निटी में काम किया है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए हम ऐसे फंक्शंस का एहतमाम करते आए हैं। तो आज खुशकिस्मती है जोन पटन की, यहाँ पे हमारे जोनल सदर ने यहाँ पे ऐसी एक तकरीब का इनेकाद यहाँ पे किया था। तो मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ ही मैं उन तमाम लोगों को जो यहाँ पे सबकदोश हुए हैं, जिनके एजाज़ में आज की तकरीब यहाँ पे मुनक्कद की गई, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की ओर से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, साथ साथ में मेरा ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ टीचर्स की बात करिए या लेक्चरर्स की बात करिए, क्योंकि आप हर एक को मुझे लगता है कि आज उनकी नुमाइंदगी आप करते हो, तो वो कहते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या इस हवाले से रहेगा? जहाँ तक सवाल है रिप्रेजेंटेशन की, हम बेशक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक ऐसी तंजीम है जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर तबके की रिप्रेजेंटेशन करता है, चाहे लेक्चरर्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे कंटिजेंट पेड मुलाजिम हो, चाहे ये कम हेल्पर्स जो हैं, चाहे आयाज हैं, जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन सब की हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मामला तो बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट के सामने इस वक्त पड़े हुए हैं, जिनका हमने बारहा एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल CM और जो डिपार्टमेंट के अफसरान बाला हैं, उनके नोटिस में हमने वक्त वो मामला लाए हैं। काम चल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है जो मतलब ऐसी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसमें पूरी तौर कोई इमीडिएटली जिसका हमें रेड्रेसल चाहिए, ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त नहीं है। लेकिन जितने भी चाहे प्रमोशंस हैं, चाहे रेगुलराइजेशन है, उस पर बात चल रही है। हमारे कंटिजेंट पे जो एम्प्लॉइज होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, उसका 50% कोटा है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने सर्व किया है, उसके लिए उनको अगेंस्ट दैट 50% उनको प्रमोट किया जाता है, वक्तन फवक्तन किया जाता है। RETs की ट्रांसफ़र एक ऐसा ट्रांसफ़र इशू रहा है जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। कल भी मैं डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश कर रहा था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो ATD हमारे है उसमें कुछ चेंजेस, उसकी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले उसमें ये मॉडिफिकेशन ज़रूरी है कि उन्होंने उसको एक कन्फ्यूज्ड सिस्टम में बनाया है, 4-5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। मैंने डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि वो अपने दफ्तर के वसातत से ये बात आला हुकाम तक पहुँचाए कि इसमें सिर्फ 3 जोन रहने चाहिए, एक सॉफ्ट जोन, एक हार्ड जोन और एक बफर। इसमें से भी ट्रांसफर टीचर्स को किया जाए, और कम से कम हर साल जो ट्रांसफर हुआ करेगी वो विंटर वैकेशंस में किया जाए, न कि एकेडमिक सेशन में होगी। और जितने भी ट्रांसफर्स की जाए, एटलीस्ट जो स्टाफ स्ट्रेंथ है, जो ऑफिशियल स्ट्रेंथ है टीचर्स की, उसका 25% एटलीस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। 2, 4, 5 लोगों को ट्रांसफर करना कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं कहलाती है। और इस ट्रांसफर पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट और वाजिया करने के लिए कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है, जो हमने गवर्नमेंट की नोटिस में लाए हैं। सर, आज मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि प्रोग्राम में नीट क्वालिफायर्स के लिए भी सर्टिफिकेट्स रखी गई थी, उनकी हौसला अफजाई के लिए। जिस तरीके से आप टीचर्स की नुमाइंदगी करते हो, उस तरीके से आप बच्चों की भी क्यों जो बच्चे हमारे स्कूलों में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूलों में है, उनकी भी क्यों आप नुमाइंदगी क्यों नहीं करते हो? क्योंकि पेरेंट्स परेशान है, जो इस वक्त हमारे नाज़रीन देखते होंगे, पेरेंट्स परेशान है, खासतौर पे प्राइवेट स्कूलों से। जो कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उस पर आप बात करना चाहते हैं? बेसिकली जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक ऐसी तंजीम है जिसमें बच्चा प्रायोरिटी है, चाहे स्टूडेंट इज आवर प्रायोरिटी। हम स्टूडेंट के हर मामले को हर वक्त उठाते रहते हैं, चाहे वो तालीम के हिसाब से हो, चाहे वो नसाब के हिसाब के साथ हो, चाहे वो किताबों के साथ हो, चाहे यूनिफॉर्म के साथ हो, चाहे उनके फीस के बारे में। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है, ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते, लेकिन गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में आते हैं, यूनियन के दायरे इख्तियार में नहीं आते हैं। हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसे वाज़िया कानून बनाए हैं जिनमें ये क्लियर कट लिखा गया है कि इनकी फीस कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात
बात यही है कि हम इन्फॉर्म्ड नहीं रहते हैं, हमारे पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड नहीं है, हमारे पेरेंट्स को अपने हुकूक की पता नहीं है, उनको इस रूल्स की पता नहीं है जो रूल्स गवर्नमेंट ने वक्तन फवक्तन बनाए हैं। अगर हम उन रूल्स की बाजियाबी करेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे तो एक पेरेंट खुद ब खुद उसको इल्म हो जाएगा कि मुझे किस हद तक फीस देनी चाहिए और किस हद तक नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक एसोसिएशन का सवाल है, एसोसिएशन मैं एज ए पेरेंट भी काम करता हूँ, तो एज ए पेरेंट मैं उनके साथ आ सकता हूँ जब भी वो मुझे बुलाए। अगर कोई ऐसा मामला हो मैं उनके साथ जा सकता हूँ, या हमारे नुमाइंदे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में होंगे या जोन में होंगे वो नुमाइंदे उनके साथ जा सकते हैं, जो वहाँ के मुतल्लिका अफसरान एजुकेशन डिपार्टमेंट से, चाहे जोनल एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो, या चाहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, हम उनके नोटिस में ये बातें ला सकते हैं कि कहाँ पे वायलेशन ऑफ रूल्स हो रही है। बेसिकली हमें रूल्स की भी पता होनी चाहिए, फिर तब पता चलेगा कि वायलेशन ऑफ रूल्स हो रही है, फीस ज्यादा मांग रहे हैं या ओवर ड्यू कोई चार्जेस कर रहे हैं। तो जब हमें इसकी जानकारी होगी तभी हम उसका इजाला कर सकते हैं। सर लास्ट में मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि बहुत सारे वो टीचर जो अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिनको शायद ये पता नहीं है कि मैं किस इस ओहदे पे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो उन टीचर्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी यही मैसेज रहेगी अपने टीचर्स की कि आप जिस प्रोफेशन के साथ ताल्लुक रखते हैं ये एक पैगम्बराना पेशा है, हमें उसकी लिहाज उसका हमने अपने जहन में रखना है, और हमारा काम जो है हमें स्टूडेंट्स को एक इल्म देना है, उस इल्म से जो मुनव्वर उसका दिल हो जाएगा, उसका जो दिमाग है वो खुल जाए, तो यही हमारी प्रायोरिटी है। तो हम चाहे अपने फर्ज भी मनसबी के साथ किसी भी तरीके से हमें समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, अपने फर्ज मनसबी के साथ कोई समझौता मत कीजिए। बाकी जो मामला आपके हैं वो हम पे छोड़िए, हम उन मामला का इजाला करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।